ظہیر جب تھرڈ ایئر میں داخل ہوا تو ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اشد قسم کا جس میں اکثر انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوش خوش واپس آیا کہ تھرڈ ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو ٹانگے میں سے اتر رہی تھی۔ اس نے ٹانگے میں سے اتری ہوئی ہزارہا لڑکیاں دیکھی تھی، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ اصل میں ظہیر آوارہ منش نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھے، کالج گئے، لیکچر سنے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور آموختہ میں مصروف ہو گئے۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھی اس کی ہم جماعت، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا انسان تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا، مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو ٹانگے پر سے اترتے دیکھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اشعار کے معنی اس کے ذہن سے پھسل گئے، اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں۔ پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے یہ کیا، ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے، اس کی ماں نے کہا، مہاجر ہیں ہماری طرح۔ ظہیر نے پوچھا، کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی وہ عمر کے ہاتھوں معذور ہے، اب 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو وہی ماں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس نے اپنی شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کھاندوں پر ہے۔ ظہیر کو 3 بہنوں کے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے اکلوتے بھائی کے کھاندوں پر تھی۔ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ ان 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں کھانے کے بعد 1 گھنٹہ تک ضرور سویا کرتا تھا، مگر اس روز اسے نیند نہ آئی۔ وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان کی مٹ بھیڑ نہ ہوئی۔ کالج سے آ کر اس نے سینکڑوں مرتبہ کوٹے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا۔ وہ بہت جلد مایوس ہونے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا تھا کہ یہ بیکار ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے، جو گھبرا گیا وہ گیا۔ چنانچہ ظہیر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رہے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے آگے ایک ٹانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا قیاس بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ ٹانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اتر پڑا۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتابیں تھی، دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی۔ مگر ٹانگے والے نے پکارا، اے بی بی جی، یہ کیا دیا تم نے؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے ٹانگے والے کو اپنے برقعے کے نقاب میں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟
टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अटन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। टांगे वाला बड़ा वहियात किस्म का आदमी था, बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर। ये सुनकर जहीर को तेश आ गया, साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ, एक मुक्का टांगे वाले की टूड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और इसकी दाहिनी कनपट्टी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर इस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निमट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो इसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई, 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निमटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि इसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। इसने टांगे वाले को खूब पीटा था और इसने ये भी देखा था कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चक लगी कड़की के पीछे से इसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 गोंसे और इस कुचवान की टूड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक इस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसने अपनी वालदा से मजीद इस्तिफसार किया तो इससे मालूम हुआ कि इस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली से जायदाद है जिसके किराए पर इन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, चुनांचे इसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर पार डाले। एक रोज इसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि वो इस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जब जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, इसने यास्मीन को टांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर इसने कागज इसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि इस खत का क्या हशर होने वाला है। वो अभी इस हशर के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा वाला इस साइकिल के पास रुका। इसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। इसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसे इस लड़की का था, जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की इस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन इसको मालूम था कि 3 बहनें हैं, हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देखकर जहीर ने ये समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला, जिन जज्बात का इजहार आपने किया है इसके मुतल्लिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपनी लुंडी समझिए। ये रुका पढ़कर जहीर के बाजी खुल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और इस रुके को पढ़ता रहता। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन से जहीर की मुठभेड़ ना हुई। इसको बहुत कुफत हो रही थी, इसलिए कि इसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई जब वो किराया अदा कर रही थी। साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके, गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर पड़पड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की
जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लोंडी समझिए, इतने रऊनत से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर इसने सोचा कि शायद ये भी अंदाजे दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए, मगर ज़हीर के दिलो दिमाग में यास्मीन की ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे। बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे इस रुक्के के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लोंडी समझिए। ज़हीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और पढ़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि इसने बदतमीज कहकर इसकी और इसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था, मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि वो गैर मामूली तौर पर दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और इसके हाथ में एक लफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर इसने लफाफा खोला। एक छोटा सा रुका था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। ज़हीर चकरा गया। इसने ये रुका बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो इसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि इसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुका मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लोंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से इसने ज़हीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारे माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर रुका हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सारे बाजार इस किस्म के मुजाहरे को पसंद नहीं करते। खतो किताबत के जरिए ही से कि ये एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनांचे इसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत इसके हाथ में दे दिया। इसने कोई एहतजाज ना किया। एक नजर इसने अपने बुरकी की नकाब में से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, इसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी इस वक्त बाजार में कोई आमद-ओ-रफ्त नहीं थी। ज़हीर ने मौका गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर इसके पास पहुंचा और इसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रोमानी अंदाज में इससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बमुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर इसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। ज़हीर बुकला गया। यास्मीन ने इसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बुकलाहट के बायस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख ना ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि टांगा आया। यास्मीन इसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई, इसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। इसने ज़हीर की तरफ देखा और इसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने इसका इशारा नहीं समझा तो वो इससे करीब होकर गुजरी और एक रुक्का गिराकर चली गई। ज़हीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया। इस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सनीमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन।